So hello 12th, welcome or welcome back to my channel. So this video is specifically going to be for 12th class students and तुम्हें पता होगा कि मेरा पहले चैनल था, but from now on I'll be posting all the videos of the college vlogs and everything on this channel. तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल और उस चैनल को चाहे तो यू कैन अनसब्सक्राइब बिकॉज आई एम नॉट गोना पोस्ट ऑन दैट, क्योंकि उसकी ग्रोथ हो नहीं रही थी. मैं इसी चैनल से आई विल जस्ट पोस्ट एवरीथिंग ओवर हियर. तो लेट्स स्टार्ट बिकॉज एज आई प्रॉमिस इन द लास्ट वीडियो, जो कि मैंने आई थिंक नवंबर में डाली थी आई गेस, और अक्टूबर, आई डोंट रिमेंबर क्वाइट अभी. But after a long delay, I have prepared a proper planner for you guys. मैंने 2 planners बनाए हैं. ओके, पहले उनके लिए 2 जिन्होंने बिल्कुल स्टार्ट नहीं की है, they have to start from the scratch. और दूसरा प्लानर उनके लिए जिन्होंने थोड़ा बहुत रिवीजन कर रखा है but they need a more sort of more guidance towards how they need to sort their subjects, their planners and everything for the exams to score 95 plus. And trust me, scoring high 95 plus is not difficult. मैंने लाए हैं तो you can also get that. But the only problem where we all lack is consistency. To be honest, I was not very consistent before December, but from January onwards I started a full-fledged preparation for my boards because I knew कि CUET भी देना है and we have to like complete our NCRTs very properly to score a good score and enroll in a good university or college. Your dream course is more important and your dream course. And I'll be just posting a video soon for CUET कि तुम्हें कॉलेज को प्रायोरिटी देनी चाहिए या फिर कोर्स को. ओके, सो वेट फॉर दैट वीडियो एंड इट इज़ गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल. सो पहले बोर्ड्स पे फोकस करते हैं, देन विल बी फोकसिंग मोर ऑन CUET जब तुम्हारे बोर्ड्स हो जाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने प्रॉपर प्लानर बना रखा है. आई होप तुम्हें राइटिंग समझ आ जाएगी, आई होप सो. तो फिर मैं इस पूरे प्लानर को आई विल बी पोस्टिंग इन द कमेंट्स ओनली. मैं इसका लिंक वो बना दूंगी PDF एंड आप यू हैव टू कमेंट कि आपको प्लानर 1 चाहिए या प्लानर 2. प्लानर 1 इज़ फ्रॉम स्क्रैच स्टूडेंट, जिनको स्क्रैच से सब कुछ प्रिपेयर करना है. दे डोंट वॉन्ट टू वेट फॉर द प्रीबोर्ड्स टू गेट ओवर बिकॉज प्रीबोर्ड्स के लिए उन्होंने प्रिपरेशन करी नहीं है. सो व्हाट दे विल राइट. सो नॉट टू डिसअपॉइंट यू और डिमोटिवेट यू, बट द ऑनेस्ट थिंग इज अगर जिन्होंने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की है, दे हैव टू कमेंट प्लानर 1 in the comment section. I'll be sharing the link, or sorry, the PDF, whatever I'll be creating, I'll just send you. And planner 2 for those guys, for those students, those who have sort of revised their concepts. The concepts are a bit clear and they have prepared for the pre-boards, and they're starting to prepare from they are going to they are preparing to sort of revise all the things for after the pre-boards. So taking that thing in mind कि तुम्हारे pre-boards अभी initiate होंगे like from 6 January 5 January your exams will be going, and I don't think कि school वाले will give you offs in between, क्योंकि pre-boards 2 जो होते हैं they want to just quickly wrap up them because practicals भी उनको start करने होते हैं. So keeping that thing in mind, if you want the planner 2, comment planner 2 in the comment section and I'll just share you the planner. Honestly, the planner I have created is तुम्हें उसके लिए you have to dedicate at least 4 to 5 hours a day because एक महीना रह रखा है and you cannot just wait for the last day to cover all your subjects, all your topics as well.
एंड मैंने तुम्हारी डेट शीट भी चेक की थी, यू हैव गाइज हैव गॉट एनफ हॉलीडेज इन बिटवीन, सो तुम्हें you guys have got a lot of holidays in between, so you sort of need not to worry or sort of get anxious about your exams, because you have enough time to prepare during your exams. Abhi ke liye you have to revise. The holidays are just for practicing your pre-YQs, your concepts again, and do a lot of questions. That's it. सो मैं एक बार प्लानर का ओवरव्यू बता देती हूँ. प्लानर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानर 1 बताऊँगी मैं. दैट इज़ फॉर दोज हु हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. तो जिनको स्क्रैच से स्टार्ट करना है, देयर टाइम टेबल और प्लानर इनिशिएट्स और स्टार्ट्स फ्रॉम 31st of December. तो 1 जनवरी का वेट मत करना, बिकॉज इट्स न्यू ईयर, सो यू विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रॉमिसेस टू योरसेल्व्स कि मैं आज से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा. बट इफ़ यू स्टार्ट अ डे बिफोर, it will be sort of give you a push as well. Okay, so मैंने न्यू ईयर को ध्यान में रखते हुए स्टार्टिंग में बहुत ही लाइट लोड रखा है कि तुम्हें ये ना कि what has she given, it's new year so we have to celebrate and all that. So keeping that thing in mind, I have given you only 2 chapters. That too, 31st December ko you have to do 2 chapters. That is only your NCERT readings. In one day you have to complete 2 chapters NCERT reading. Or trust me, your chapters are not very long like history. As compared to history, they are not very long chapters given in pol science. So you can cover them, read them in about 2.5 hours or 3 hours maximum if your speed is very slow. Go on revising your concepts. Okay, तो ऐसे करते करते you have to, I have given 2 chapters, 3 chapters, धीरे धीरे मैक्सिमम 5 chapters you have to cover in a day. अगर तुम्हें ढंग से प्रिपेयर करना है तो you have to do this, because जैसे मैंने प्रिपेयर किया था, मैंने बिल्कुल आई ट्राइड कि मैंने वैसा टाइम टेबल क्रिएट किया है. तो 3 चैप्टर 4 चैप्टर तो तुम्हें डिलीट करने पड़ेंगे. एंड मैंने कॉम्बिनेशन बनाए हैं दैट तुम्हें थोड़ा ईजी भी रहे कि NCERT एक दिन करनी है या PYQs कब करने हैं. मैंने 3 कॉलम्स बनाई हैं, एज यू कैन सी. ये है डेट्स की कॉलम, जहाँ पे जोन से दिन तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट करना है. देन द सेकेंड कॉलम इज़ फॉर द चैप्टर्स, कि तुम्हें कौन से चैप्टर्स करने हैं पर्टिकुलरली. फिर ये थर्ड कॉलम इज़ फॉर कि तुम्हें NCERT रीड करनी है, PYQs करना है उस दिन, या क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करना है. सो दिस इज़ गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइज कि तुम कंफ्यूज ना हो. यू सॉर्ट ऑफ कि तुम्हारा चैप्टर, तुम्हारे सब्जेक्ट्स भी कवर हो जाए और अच्छे से हो जाए, नॉट जस्ट कि तुमने क्रैम कर लिया या फिर सॉर्ट ऑफ जल्दी जल्दी में जस्ट यू हैव rushed through everything. Okay, so keeping that thing in mind, I have taken it very कि मैं कैसे प्रिपेयर करती इस टाइम पे, अगर मुझे स्क्रैच से करना होता है या मुझे प्री बोर्ड्स के बाद शुरू करना होता है. एंड सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द प्री बोर्ड्स, सॉरी नहीं, तुम्हारा मैंने 31st से स्टार्ट करो तो तुम्हारा सिलेबस ऑलमोस्ट 27th तक कंप्लीट हो जाएगा. 27th जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा. तो तुम्हारे पास फिर जो भी, जिसके पास भी 6th सब्जेक्ट है, आई हैव कवर्ड ओनली 5 सब्जेक्ट्स इन दिस. अगर तुम्हारे पास 6 सब्जेक्ट्स हैं तो यू कैन ऐड 26 जनवरी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एज पर माई प्लानर. उसके बाद 27, 28, 29, 30, 31 5 days आर लेफ्ट. यू कैन कवर इन दैट sixth subject, your 6th subject that is you have to cover. Okay, or the leftover chapters you can cover in these 3 to 4 days. February 1 say you have to start your PYQs, question banks and all that. I have given here so you can just see. और अगर मैं बात करूँ preparations, if you're starting after pre-boards, that is I have started your planner from 14th of January. जिसमें supposedly if your pre-boards are getting over 11, 12 or 13, तो थोड़ा सा गैप, तुम्हें एक दिन का गैप तो चाहिए ऑलमोस्ट, जस्ट टू थोड़ा रिलैक्स करो माइंड को, क्योंकि तुम्हारे लगातार एग्जाम्स चल रहे हैं एंड ऑल दैट. आई कैन जस्ट रिलेट टू यू पीपल, क्योंकि थोड़ा you can't study continuously or very efficiently every single day. तुम्हें कुछ लाइट डेज रखने पड़ेंगे, कुछ हैवी डेज रखने पड़ेंगे to just balance the
academics and your mental health as well, physical health as well. तो 14 जनवरी को ऑल मैप वर्क ऑफ हिस्ट्री एंड जोग्राफी तक तुम्हें ज़्यादा लोड ना आए दिमाग पे. यू हैव ऑलरेडी रिवाइज्ड, तुम्हारे प्री बोर्ड से तुमने रिवाइज कर रखा है और अभी वही चीज़ें तुम अच्छे से रिवाइज कर रहे हो. तो एक दिन पूरा हिस्ट्री जोग्राफी के मैप्स रिवाइज करोगे. देन 16th और 15th जनवरी को यू कैन स्टार्ट योर इंग्लिश पोम्स. सिर्फ इंग्लिश की सारी पोम्स कवर करनी है. दैट आर ओनली 5 or 6 पोम्स. तो तुम्हें एनसीईआरटी रीड करनी है, क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करने हैं. तो फिर तुमने एक बार रिवाइज कर रखा है, यू आर जस्ट गिविंग इट अ quick question bank practice that you have not done in the pre-boards. So it will be a really helpful planner as per me. अगर तुम्हें कोई डाउट आती है तो you can always like email me or drop a comment in the comment section. I'll just reply to you, to each and every one of you if your comments are valid, obviously. एंड इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम आफ्टर योर प्री बोर्ड, तो तुम्हारी प्रेपरेशन जो है वो 9 से 10 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगी और 8 फरवरी या 9 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगी. तो इफ़ यू आर हैविंग अ फिजिकल एजुकेशन एग्जाम 17 जनवरी को, तुम्हारे पास फिर भी एक हफ्ता है, एक वीक है कवर करने के लिए दैट एवरीथिंग. तो तुम अपने हिसाब से देख लेना. मैंने अपना प्लान 5 सब्जेक्ट्स के हिसाब से बनाया. वैसे भी तुम्हारे बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लगने हैं. सो यू कैन जस्ट प्लान कि तुमने किसको प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है. डोंट जस्ट थिंक कि मेरे को 6 सब्जेक्ट है, 5 के नंबर लगने हैं तो फिर मैं 5 को ढंग से करे तो 6 का करता नहीं हूँ. क्या पता तुम्हारे 5th जो तुमने 5 अच्छे से प्रिपेयर किए हैं उसमें से कुछ बाय चांस कुछ हो जाता है, कम मार्क्स आ जाते हैं. तो फिर 6 सब्जेक्ट्स जो तुमने 6th सब्जेक्ट जो तुमने ढंग से प्रिपेयर किया है वो दैट विल हेल्प यू बिल्ड योर स्कोर बेटर. मेरे और बात रहती है अबाउट योर सैम्पल पेपर्स और PY सैम्पल पेपर्स. तो मेरे पास पॉल साइंस की ओसवाल है, हिस्ट्री की ओसवाल है और इंग्लिश के ऑल्सो आई कैन प्रोवाइड यू सम क्वेश्चन बैंक्स इफ़ यू आर विलिंग टू. और जोग्राफी के नोट्स मैंने आई विल अपलोड देम इन द कम्युनिटी सेक्शन अगेन इफ़ यू वांट जोग्राफी नोट्स, जो कि एनफ है. मैंने लास्ट जो मेरा पहले चैनल था उस पर भी मैंने बताया था कि जोग्राफी के नोट जो मैं दे रही हूँ दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय माय टीचर. मैंने सिर्फ उनसे ढंग से प्रिपेयर किया था एंड आई वाज एबल टू स्कोर 98 इन जोग्राफी. बुक पे फॉर MCQs एक बार 2 बार, मतलब यू कैन नॉट एक बार 2 बार, अगर तुम रिवाइज कर रहे हो तो फिर 2-3 बार तो करो NCERT रिवाइज. अगर MCQs के लिए तो 2-3 बार रिवाइज करो NCERTs. बाकी यू कैन रेफर टू दोज. इकोनॉमिक्स से जो भी रेफरेंस बुक तुम्हारे स्कूल ने रिस्पेक्टिव स्कूल्स ने प्रोवाइड की है, यू कैन जस्ट रेफर टू दोज बुक्स, दे आर इनफ. NCERT मैंने रीड नहीं की थी टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड फॉर इकोनॉमिक्स जो भी तुम्हारे रिस्पेक्टिव स्कूल्स ने तुम्हें बुक्स प्रोवाइड की है दे आर इनफ. चाहे वो संदीप गर्ग हो या फिर टीना जैन हो. हमारी JJ ब्रदर्स थे, आई गेस ब्रदर्स का कुछ था, तो हमारी वो थी क्योंकि उसमें MCQs है और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस है दैट आर इनफ फॉर योर प्रिपरेशन. तो तुम्हें एक्स्ट्रा बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है टू बी ऑनेस्ट फॉर इकोनॉमिक्स. PYQs एंड रेफरेंस बुक इज इनफ. फॉर इंग्लिश आई कैन प्रोवाइड यू द क्वेश्चन बैंक. I'll upload the PDF of it if you want it. और बाकी तो यू हिस्ट्री के लिए NCERT पढ़ो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. NCERT और ओसवाल की इस ओसवाल क्वेश्चन बैंक खरीदो. इफ़ यू बुक रेफरेंस के लिए आई सजेस्ट यू ओसवाल का क्वेश्चन बैंक ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री, दे आर वेरी हेल्पफुल. और जोग्राफी का ओसवाल भी अच्छा है बट जो नोट्स में है वही बात उसमें कवर हो रही, बट इफ़ यू वांट इट यू कैन बाय इट always. So that's all for the video. If you have any doubts, if you have any queries, you can always check out on the comment section and check out my email as well. You can just go by 12th is all the best for exams 4 doge. Just focus on your work. अपनी मेंटल हेल्थ की धज्जियाँ मत उड़ाना धज्जियाँ, वरना तुम और एक इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग है एंड ऑल. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन हाउ टू मैनेज योर डिस्ट्रैक्शंस. स्पेसिफिकली आई विल मेक द वीडियो फरवरी में बिकॉज तुम्हारे प्रैक्टिकल्स भी ओवर हो जाएंगे एंड यू विल बी सिटिंग एट होम. तो तुम्हारे पास
ज़्यादा टाइम होगा तो तुम्हारे दिमाग में यू विल फील लाइक कि 24 आवर्स हैं, मैं अपने आप आराम से कर लूँगा काम सॉरी, बट वो होता नहीं है because of distractions, and I'll tell you how to stay focused. So that's all for the video. Any doubts, any queries, any suggestions for me, you can always comment down, and I'll be posting the videos like this very often. I hope so, but that depends on the support as well. So subscribe to the channel or we'll grow